and welcome to the NDTV Auto Show. I'm your host Mugdha Mishra, and first story is a real special one. I had a lot of fun doing it, and that's Aston Martin Vantage review. Oh my god, that was beautiful. That was stunning. This is so much fun. Oh my god, it is super quick and the sound is just phenomenal. बहुत ही बढ़िया मजा है. You know that feeling when you hear the car before you see it? That deep guttural sound that tells you something interesting is coming. Today is not about a review. It's a reminder of why we fell in love with cars in the first place. Drama, design and a little bit of madness wrapped in an unmistakably British silhouette. Ladies and gentlemen, feast your eyes on the Aston Martin Vantage, a purebred sports car that oozes charisma and commands attention. Just look at it, sculpted, seductive and every inch a showstopper. और ये Aston Martin Vantage है इस आयन ब्लू में, जो कि बेहद खूबसूरत लगता है। यहाँ पर आपको DB12 से डिजाइन इंस्पिरेशन दिखाई देगी। बाय द वे DB12 का रिव्यू भी हमने किया हुआ है, आपको हमारे YouTube चैनल पर मिल जाएगा। बट Aston Martin Vantage का अपना अलग अग्रेसिव स्टाइल भी है। सबसे पहले यहाँ पर ये बड़ा ग्रिल आपको दिखाई दे रहा है। इट्स मच वाइडर, मेकिंग द फ्रंट लुक अ लॉट मोर अग्रेसिव। यू ऑल्सो गेट दीज Matrix LED headlamps. You can see the bumper is in black and it gives a little bit more muscle to the car. On the side you have this beautiful looking alloys, and in this car you get these black calipers. The brakes themselves are cast iron brakes. The Vantage comes with 21-inch wheels, और अगर आपको ये पसंद नहीं आ रहे हैं तो आपके पास 9 अलग alloys चुनने का ऑप्शन है. Again, making it look very interesting. And by the way, this grille is big not just for show but for functionality as well. You can see there are large air dams for the air to flow in to cool the engine. You will see air dams here as well for the air to come out and then flow smoothly. There are air dams on the side as well, and the streak with the Aston Martin lettering makes a comeback on the Vantage. On the side, this rimless ORVM moves almost entirely reminds me of ET. ये हमने DB12 में भी देखा था। नीचे नजर डालिए, यहाँ पर आपको बड़ा सा skirting black कलर में दिखाई देगा, and these doors are very special. They open slightly upwards, giving it that swan opening. If the Aston Martin Vantage hasn't amazed you yet, this rear will definitely do that. It is so beautiful. It's wide, well sculpted. It will give my gym girlies a reason to be jealous of Vantage. If you know, you know. Well, it also gets this duck lip type spoiler here. Then you have this very interesting looking bumper with diffusers and quad exhaust. यहाँ पर आपको Aston Martin ब्लैक में लिखा हुआ दिखाई देगा और बैज भी ब्लैक में दिया गया है। आई एम श्योर ये ऑप्शनल है, पर इस गाड़ी के साथ, स्पेशली इस कलर के साथ, ये ब्लैक कलर्स की बहुत अच्छे से जा रही है। अब आपको एक चीज़ और बताऊँ, वैसे तो ये स्पोर्ट्स कार है, लेकिन इस पर आपको थोड़ा सा लगेज स्पेस मिल जाता है। ओवर 300 लीटर का बूट स्पेस है यहाँ पर, जहाँ पर आप थोड़ा बहुत सामान रख के अपनी लॉन्ग ड्राइव पर भी जा सकते हैं। बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि 4 करोड़ से ऊपर की गाड़ी है। 4.2 करोड़ एक शोरूम इसकी कीमत है, लेकिन यहाँ पर आपको कोई बटन नहीं मिलता इसको बंद करने के लिए। टेल गेट को आपको मेहनत करके ही इसे बंद करना पड़ेगा। एंड दिस इज वेयर ऑल द मैजिक हैपेंस। Aston Martin Vantage gets the Mercedes sourced 4-liter twin turbo V8 engine, but This is a Mercedes sourced engine, but Aston Martin has tuned it to give you 665 HP of power and 800 Nm of torque.
making sure that this car does 0 to 100 in 3.5 seconds. क्या ये वाकई इतनी क्विक है? गाड़ी के अंदर बैठ के पता करेंगे, लेकिन उसके पहले यहाँ पर बहुत कुछ ऐसा है जो आपको बताना चाहिए मुझे। पहले तो आप देख सकते हैं ये जो इंजन है ये काफ़ी पीछे की तरफ माउंटेड है, और ये इसलिए किया गया है बिकॉज एस्टन मार्टिन कहती है कि ये फ्रंट मिड माउंटेड इंजन है, जिससे जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है वो गाड़ी का 50-50 मेंटेन हो सके, और इसीलिए इसकी ये पोजीशनिंग है। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़ देखिए, आपको यहाँ पर ये वेंट दिखाई दे रहा है। वेल, ये इंटेंशनली बनाया गया है क्योंकि इसके जो टर्बोज हैं वो पीछे की तरफ हैं, तो एयर यहाँ पर इंसुलेशन दिया गया है। एयर यहाँ से अंदर जाती है, ठंडी ही रहती है, और फिर उधर बाहर निकलती है टर्बोज को कूल करते हुए, और यहाँ इन वेंट से हवा निकलती है बाहर। तो चलिए अब बैठते हैं गाड़ी के अंदर और पता करते हैं कितना फन है ये एस्टन मार्टिन वांटेज with all the tech that is available for you. You're driving the Aston Martin Vantage, and before I start talking about how does it feel to drive, let me first touch upon its interiors. बहुत ही बढ़िया इंटीरियर्स है इसके। ये जो टैन कलर है उसके साथ यहाँ पर आपको एक्सपोज्ड ब्लू स्टिचेस दिखाई दे रही हैं। कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया स्पोर्टी लुक देता है इसको। And there are 7 color options available for interiors. In fact, आप Vantage को पूरी तरह से अपने हिसाब से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। You have several options to choose from, both on the exteriors and on the interiors. इसमें आपको 2 स्क्रीन्स मिल रही हैं, 10.25 इंच की दोनों स्क्रीन्स हैं। यहाँ पर इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन और सामने ड्राइवर डिस्प्ले। स्क्रीन का रिस्पॉन्स वगैरह तो ठीक है, लेकिन फॉन्ट साइज बहुत ही छोटे हैं। इवन ड्राइवर डिस्प्ले के फॉन्ट साइज छोटे हैं और इंफोटेनमेंट स्क्रीन के फॉन्ट साइज भी बहुत छोटे हैं, सो यू विल हैव टू टेक योर आई ऑफ द रोड व्हेन यू आर ट्राइंग टू मैनेज इट। बट द गुड थिंग इज यू गेट अ लॉट ऑफ बटन्स, एंड यू नो व्हाट, आई थिंक जो नेक्स्ट वेव ऑफ लग्जरी होगी उसमें आपको बटन ज़्यादा मिल रहे होंगे। पहले बटन से टच स्क्रीन पर गए सब, लेकिन अब मुझे लगता है कि बटन्स जो है वो ज़्यादा फैशनेबल होंगे, बिकॉज पीपल हैव रियलाइज्ड दैट यूजिंग बटन्स इज लॉट मोर कन्वीनियंट। The quality of the interiors is also top notch. You get this Alcantara leather for roof lining, all leather wrapped everywhere, looks beautiful. But now let's talk about how it drives. It drives beautifully. It is so stable on your turns, gives you absolute confidence to push it harder. I wish I had this car on a racetrack where I could push it really in the corners. Right now I have to be a little bit careful, but man is this fun. It is real good fun. On the turns you can actually feel the stability of that car, the benefit of that 50-50 weight distribution. It is superb. You also get a lot of features in this car, including ADAS. The new Aston Martin, as I told you, gets the Mercedes sourced engine, but इसमें पावर आपको बेटर मिल रही है। इनफैक्ट इसके पहले जो वांटेज आती थी उससे भी ये पावर कहीं ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 30% ज़्यादा। और ये स्टीयरिंग बहुत ही प्रिसाइज है, बहुत बढ़िया फीडबैक देता है। आपको लगता है, पता चलता है that you are connected with the car, that you and the car is just one being on the move. Find a free patch and then you just go for it. It is so quick. It is so quick, and this gearbox is phenomenal. When you want to push it, it just downshifts so smoothly you don't get to know at all. The DB12 also gets the same engine, and this one make sure that you know it's a sports car. That's why इसमें आपको GT mode ही नहीं मिलता. You get sports mode and you get sports plus mode, and then you get the track mode. Well, we obviously cannot use the track mode today, but I have tried the sports plus mode where this becomes an absolutely mental machine. Can you hear it roar? Can you hear it roar?
I wish I had a longer badge. Okay, I think I found one for myself, a longer badge. So right now I am in Sports Plus mode and I just want you to enjoy the music. Oh my God, that was beautiful. That was stunning. Amazing. That beautiful sound of V8. Soul satisfying. और इसका सस्पेंशन, मैं जिन रोड्स पर हूँ वो बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं है, कहीं कहीं पैचेस हैं जहाँ पर ख़राब रोड है और बहुत बढ़िया से उन्हें अब्जॉर्ब कर रहा है. सो आई थिंक दिस इज़ प्रोबेबली दैट स्पोर्ट्स कार दैट यू कैन एक्चुअली ड्राइव एवरी डे. जी हाँ, एक ऐसी स्पोर्ट्स कार जो आप रोज़ ड्राइव कर सकते हैं. स्पीड ब्रेकर्स इट हैज़ हैंडल वेरी वेल. ख़राब रोड ये अच्छे से हैंडल कर रही है. थ्रिल तो आपको मिल ही रहा है. So I think it's actually a very good everyday sports car. With prices starting at rupees 4.25 crores, the Aston Martin Vantage isn't just a sports car. It's a statement. If you're chasing pure driving thrill, want to turn heads on every street, and still need something civilized enough for your daily factory run, the Vantage checks every box and then some. Back down. We don't back down. Back out, waiting for nothing. I get it right now. Seizing the moment, no time to lay around. Will we ever? Alright, so what we have here is the 2025 Royal Enfield Hunter 350, one of the best selling motorcycles from Royal Enfield's portfolio in India and globally. So RE says that since its launch in August 2022, the company has sold over 6 lakh units of the Hunter worldwide, and they add 1 lakh units of the Hunter on Indian roads every 6 months, right? So starting with the changes, firstly, the rear suspension has been tuned differently now. RE has listened to customer feedback, because I remember riding the Hunter 350 earlier and the rear suspension was really stiff. So RE has listened to that. It says that this is more comfortable now. The seat gets extra cushioning, so it's thicker now, and also the ground clearance has increased by 10 mm. So right now the ground clearance is 160 mm, going up from 150 mm, right? Also, if you pan the camera here, then this motorcycle gets a Type-C USB charging port right here, so you can charge your devices on the go. And on the top spec models, the tripper pod comes as standard fitment. So the other updates include a new LED headlight, which you see on other Royal Enfield motorcycles as well, and also the fact that the Hunter 350 now gets a slip and assist clutch. The first 350cc motorcycle in Royal Enfield's portfolio to get a slip and assist clutch, which means the clutch action now becomes lighter and it is easier to ride in the city. There are 3 new color schemes: Tokyo Black, London Red and Rio White. So there are 3 new color schemes. Not many changes to the Hunter 350, one of the best selling motorcycles from Royal Enfield in India at the moment. But yes, Royal Enfield thinks that these minor changes, specifically the retuning of the rear suspension, will add to the sales volumes of this motorcycle in India. नमस्कार दोस्तों, एनडीटीवी ऑटो के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। 125 सीसी सेगमेंट की सबसे चहीती स्कूटर सुजुकी एक्सेस आज है मेरे साथ, और स्कूटर को मिले हैं कुछ तकनीकी रूप से बदलाव 2025 मॉडल में। आज करेंगे माइलेज टेस्ट, तो चलिए पहले पेट्रोल भराते हैं और ऑन द वे बात करेंगे क्या हुए चेंजेस और ये चलाने में कैसी है। कंपनी का कहना है बहुत हद तक तकनीकी रूप से चेंजेस किए गए हैं, जिनमें शामिल है इंजन में नए कंपोनेंट्स, चाहे क्रैंकेस की बात करें, कैमशाफ्ट, क्रैंकशाफ्ट, सारे इंटरनल्स को चेंज किया गया है। इसके तहत ECU मैप भी रीमैप किया गया है, जो मफलर है उसका डिज़ाइन चेंज किया गया है। इसमें जो मेन फ्रेम है उसको भी थोड़ा सा एडजस्ट करने की ज़रूरत पड़ी है टू एकोमोडेट ऑल ऑफ दिस इन दिस फ्रेम।
सुजुकी एक्सेस जानी जाती है अपनी स्मूथ रिफाइनमेंट के लिए और वही चीज़ आपको इस इंजन, चैसी और इस ढांचे में दिख जाएगा। चलाने में बहुत ही ये प्लेजेंट एक्सपीरियंस है। 50, 60, 70 के स्पीड पे काफ़ी आराम से क्रूज करती है। अगर आप इसे थोड़ा सा एक्सेलरेट भी करते हैं, 80 के ऊपर भी जाते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा बजी फील नहीं होगी, बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस नहीं आपको दिखाई पड़ेंगे। पहले के मुकाबले पावर और टॉर्क फिगर बदल चुका है। पावर में हुई है कटौती, जो अब 8.4 हॉर्स पावर रह गया है। वहीं टॉर्क बढ़ के 10.2 न्यूटन मीटर का आपको मिल जाएगा। हालांकि इस OBD2 कंप्लायंट इंजन से आपको परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा तब्दीलियां नहीं दिखेंगी। 12 और 10 इंच का व्हील है और मुझे यहाँ पे थोड़ा लगता है कि शायद कंपनी अपग्रेड कर सकती थी, 12 इंच के रियर चक्के देती तो और ज़्यादा आपको स्टेबिलिटी फील होती। लेकिन कंपनी का कहना है कि कॉस्ट कटिंग और एक बजट में बनाया जा रहा है, तो उसके लिए कंपनी 12 इंच की ओर नहीं गई है। लेकिन शहरी ट्रैफिक में आपको ये काफ़ी अजाइल लगेगी, आप आराम से निकाल सकते हैं ट्रैफिक के बीच से। एजिलिटी में कोई दिक्कत नहीं है। ये जो वेरिएंट मेरे साथ है ये डिस्क वेरिएंट है। आपको ठीक ठाक स्टॉपिंग पावर मिल जाएगा, लेकिन आप पैनिक ब्रेक हाई स्पीड पे लगाएंगे तो थोड़ा सा वोबली फील हो सकता है, थोड़ा सा आपको लग सकता है कि और ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता तो बेहतर होता। सुजुकी एक्सेस की एक बहुत ही जो अच्छी बात है वो है ये सबको भाती है। इसका राइडर ट्रायंगल जो है, इसका जो वेट है, ये डिफरेंट सेगमेंट ऑफ राइडर्स के साथ जाता है। आप महिला हो, पुरुष हो, वृद्ध हो या फिर यंग, आपको ये कहीं से भी भारी या फिर बहुत बड़ी नहीं लगेगी। ग्राउंड क्लियरेंस 160 मिलीमीटर और जो वजन है वो लगभग 105 किलो है। मतलब ओवरऑल यहाँ पे जो राइडिंग ट्रायंगल ये सारे वर्ग के राइडर्स को भाता है। आज जो मेरी राइड रही वो लगभग 140 किलोमीटर की रही। तो चलिए चलते हैं पेट्रोल पंप की ओर, फिर से भरवाते हैं और देखते हैं कितना मिलता है औसत, और आगे बात करेंगे क्या कुछ फीचर्स स्कूटर में मिल जाता है। तो ये तो बात हो गई परफॉर्मेंस और माइलेज की। अब एक बार नजर दौड़ा लेते हैं क्या कुछ डिजाइन में अंतर है पहले से और क्या कुछ फीचर्स आपको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। अलॉय व्हील टॉप वेरिएंट के साथ मिल जाता है। जो इसमें डिस्प्ले दिया गया है, इस डिस्प्ले में अब कुछ तकनीकी रूप से बदलाव किए गए हैं। यू कैन हैव नेविगेशन, अलॉन्ग विद दैट यू कैन ऑल्सो लोड प्लेंटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स। आप ऑन द मूव बहुत कुछ यहाँ पे सामान लोडेड रख सकते हैं ताकि आपको उनको मैनुअली कैरी ना करना पड़े। साथ ही साथ जो अंडर सीट स्टोरेज है वो पहले से बढ़ चुका है और इसकी जो वजह है वो है जो फ्यूल इनलेट कैप है वो आप पीछे की तरफ धकेल दिया गया है। आपको पेट्रोल पंप पे उतरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप आराम से इसे रिफिल कर सकते हैं और इसके वजह से अंडर सीट स्टोरेज पहले से लगभग 3 लीटर बढ़ चुका है। आपको लगभग 24.5 लीटर का यहाँ पे बूट स्पेस मिल जाएगा, जहाँ आप एक हाफ फेस हेलमेट, इसके साथ साथ और कुछ सामान रख सकते हैं। सामने की ओर अब आपको एक एक्स्ट्रा पॉकेट भी देखने को मिल जाएगा, जो मुझे लगता है काफ़ी हैंडी फीचर है। और सामने की ओर यहाँ पे आप देखेंगे तो थोड़ा सा लाइट का जो क्लस्टर है ये पहले के मुकाबले बदल दिया गया है, लेकिन बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। सुजुकी एक्सेस की जो डिज़ाइन है, जो छवि है, वो आपको यहाँ पे साफ झलकती दिखाई पड़ेगी। लेकिन पीछे की ओर जो लाइट क्लस्टर है, टेल लैम्प क्लस्टर, इसे थोड़ा सा बदल दिया गया है। आप यहाँ पे 3 कंपार्टमेंट में टेल लैम्प देख सकते हैं और ये थोड़ा सा नयापन देता दिखाई पड़ रहा है। लेकिन ओवरऑल स्कूटर की जो रिफाइनमेंट है वो पहले की तरह ही बरकरार है। साथ ही साथ फैमिली को ये काफ़ी पसंद आएगी। और कीमतों की बात करें तो पहले के मुकाबले लगभग 3,000 रुपये का इजाफा हुआ है। 83,000 रुपये एक शोरूम से शुरू होती है और ये जो टॉप वेरिएंट है लगभग 94,500 एक शोरूम की कीमत पे रखी गई है। देवी और सज्जनों, ये है छोटा हाथी, यही समझे ना, लेकिन नहीं है। देयर इज अ कैच। दिस इज समथिंग मोर एक्साइटिंग, मोर केपेबल देन द सो कॉल्ड छोटा हाथी। ये जो बड़ा डेक आप देख रहे हैं, इट गिव्स यू अ कार्गो वॉल्यूम ऑफ 260 क्यूबिक फीट। जी हाँ, 260 क्यूबिक फीट का कार्गो वॉल्यूम। नाम है ऑयलर स्टॉर्म ईवी। अब इसके बारे में क्या कुछ है खास जानेंगे इस वीडियो में, वेयर आई विल बी गिविंग यू अ इन डेप्थ वॉक अराउंड ऑफ द ऑयलर स्टॉर्म ईवी। ADAS, जी हाँ, आपको इसमें मिलता है ADAS, लेकिन लेवल 0 ADAS। कैमरा पावर्ड है, यानी कि आपको नोटिफिकेशंस मिलेंगे, लेकिन कोई भी इंटरवेंशन ये ADAS नहीं करेगा, यानी नो ब्रेकिंग इनपुट, नो एक्टिव लेन असिस्ट, लेकिन आपको बताता रहेगा कि आप गलतियाँ क्या कर रहे हो। डिज़ाइन की बात करूँ तो मुझे काफ़ी ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड ये डिज़ाइन लगा। इट लुक्स रियली अपीलिंग, क्योंकि सामने की ओर आपको एक ट्रांसपेरेंट केस में मिल जाती है ऑयलर की बैजिंग,
उसी के साथ ये स्लीक LED हेडलैम्प्स जिनमें डायनामिक स्वाइप मिलेगा आपको DRLs के लिए। और जब आप इसको चार्ज करेंगे तो आपको पता कैसे लगेगा कितना चार्ज हो गया है? वेल, जो ये DRLs हैं ये इस पैटर्न में जलेंगे कि आप फिगर आउट कर पाए कि बैटरी कितनी % चार्ज हो चुकी है। नीचे की ओर आपको डुअल टोन बम्पर मिल जाता है और ये जो फॉग लैंप्स है ना, बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं बताता हूँ। तो ये है इंफ्रारेड बेस्ड लाइटिंग, यानी कि कोहरे के दौरान, अंधेरे के दौरान आपको इसके अंदर एक बड़ी टच स्क्रीन मिलती है जहाँ पर सब कुछ दिखेगा कि इस ट्रक के आगे क्या है। तो फटाफट अंदर बैठते हैं, देखते हैं भाई चलती कैसे है। वेल, बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में खास हैं, जैसे कि इसमें AC नहीं मिलता है तो विंडो में रोल डाउन कर लेता हूँ, लेकिन आपको एक फ़ैन मिल जाता है। उसी के साथ जो अच्छी चीज़ मिलती है कि ड्राइवर सीट को आप रिक्लाइन कर सकते हैं और आगे की ओर स्लाइड भी कर सकते हैं। सबसे बड़ा फीचर इस गाड़ी का वो है ये 10 इंच की टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट यूनिट। इसकी अच्छी बात यह है कि ये एंड्रॉयड पावर्ड है। इसमें आप व्हाट्सएप वेब चला सकते हैं, यूट्यूब चला सकते हैं, जियो हॉटस्टार चला सकते हैं। और उसी के साथ अगर आपको मिलती है कोई लोकेशन, वहाँ जाना है, व्हाट्सएप पे लोकेशन आई है तो व्हाट्सएप भी आप इसमें एक्सेस कर सकते हैं व्हाट्सएप वेब के द्वारा। व्हाट दैट मीन्स कि ये गाड़ी हर तरीके से सुडल है। अब बात कर लेते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। तो ये आपको एक छोटा सा TFT LCD डिस्प्ले मिल जाता है विद अ लॉट ऑफ टेलटेल लाइट्स। उसी के साथ आपको एक नॉब मिलती है। अब एक गियर सिलेक्टर नॉब ही ड्राइव मोड सिलेक्टर नॉब का भी काम करती है। तो यहाँ पर आपको 3 ड्राइव मोड्स मिल जाते हैं, इको, थंडर और राइनो। 19.2 kWh का बैटरी पैक, यानी कि 140 किलोमीटर की रेंज। उसी के साथ ऑयलर क्लेम करता है कि 6.6 kWh का आपको ऑनबोर्ड चार्जर मिलेगा, यानी 100 किलोमीटर की रेंज मात्र 30 मिनट के चार्ज में। सामने की ओर डिस्क ब्रेक, पीछे की ओर ड्रम ब्रेक्स, आपको रीजेनरेटिव ब्रेकिंग भी मिल जाती है। और 4 वेरिएंट्स मिलते हैं, एक 260 क्यूबिक फीट, एक 220 क्यूबिक फीट, एक ओपन टॉप फ्लैट बेड और एक ये बोलते हैं आर्मर्ड वर्जन, यानी कि विच इज़ अ हाई लोड वर्जन जिसमें आप थोड़ा ज़्यादा रफ यूज़ कर सकते हैं। कीमत शुरू होती है 8,99,000 रुपये से और बात करी जाए रनिंग कॉस्ट की तो लगभग ₹2.5 प्रति किलोमीटर। वहीं जो इसका सबसे बड़ा राइवल है टाटा एस, यानी छोटा हाथी CNG पर, उसकी रनिंग कॉस्ट लगभग 6 से 7 रुपये प्रति किलोमीटर आती है जब उसको आप CNG पे यूज़ करेंगे। तो आपको ऑयलर स्टॉर्म EV कैसा लगा? वेल, मुझे काफ़ी ज़्यादा किफ़ायती ऑप्शन लगा। मैंने इसको चला कर देखा यहाँ ग्राउंड में, जो इनकी टेस्टिंग रिग है इसमें आई कुड फिगर आउट कि ब्रेकिंग काफ़ी स्पॉट ऑन है, बट वज़न के साथ थोड़ा सा टाइम ज़रूर लेती है। और पावर स्टीयरिंग कमाल का है। इनफैक्ट जब ये गाड़ी खड़ी होती है और इसके अंदर इसका रेटेड लोड डला हुआ होता है, यानी कि इस डाले के अंदर जब 1.25 टन माल होगा तब भी इसका पावर स्टीयरिंग आपको काफ़ी ज़्यादा स्मूथ लगेगा। इनफैक्ट आप उसे अपनी पिंकी फिंगर से भी ऑपरेट कर पाएंगे। एंड आई थिंक दैट वाज ऑल अबाउट द ऑयलर स्टॉर्म EV. Well, that's all for today. But if you want to continue watching auto-related content, go to YouTube, search for NDTV Auto and subscribe to our channel. You can also follow us on your favorite social media platform. See you next week. Till then, drive safe, take care, bye-bye.